आवाज ठीक ना है तो आप मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी। Sorry, first of all, I would like to seek apology. I'm a bit late, not a bit, just I think half an hour late. That's a big time, big portion of time that I wasted because, it's the first day and I've been with the students of essential grammar and use and their children because mostly are not, I think, graduates. They are just, I think, school students are the intermediate students. Some of them are the professionals, but they have not got good English. So I'm trying to improve them in such a way that they could speak and understand real English. As students are also doing IELTS and the listening is not so sound. So to improve their accent, pronunciation, and listening power, I'm a bit cautious about the ABC of English. But now in this group, mostly the students have competition, CSS, PMS, and those who are interested in writing styles have also joined me. You also want to speak good English, but the previous group is definitely for those who are the beginners and who want to speak and write and understand English. That's the fundamental level I've started from. This is advanced English grammar course for the competitive students, for the aspirants of the competition, and the students who want to go abroad for further higher studies. If you have got some kind of lack of knowledge about English language, I'm going to teach you Raymond Murphy's English Grammar in Use, published by Cambridge University Press. And with due apology, first of all, I would like to explain mostly the teachers who don't know grammar always speak against grammar. And they say grammar is not something necessary for the students of current age. They are wrong because they don't know grammar. That's why they blame it. Mostly the students, the teachers who just can teach a few skills like IELTS, like, they are focused on PTE, they have done just IELTS or PTE themselves, but they have not got the teaching methodology. So they say English grammar is not something good for you. And in my point of view, I am Aziz Nazi. I'm PhD in English language from abroad. I've got my qualification from Cambridge University, from University of Malaysia, and from Pakistan as well. I've got 25 years teaching experience. And I've also taught in abroad, in China, in Vietnam, in Malaysia, in Singapore, and Thailand. At the moment, I'm teaching online to Chinese students. In Britain, the in UK at the moment, they are appointing the teachers who should be good at grammar because they say on account of being weak in grammar, most of the students are violating the real origin of their language. They're playing with the beauty of this language. So they're teaching their students English grammar. English grammar is the true way that and the best way to learn English. If you can't construct a sentence, you can't understand English. It means you don't know English. If you can't make a sentence in English in the right way, if you are syntactically so weak, I think, you are not a good speaker, you're not a good writer. To enhance your writing style and expression, you need to have command at grammar. अब जो बोलते हैं कि ग्रामर जरूरी नहीं, तो पास्ट को क्या प्रेजेंट में बयान करेंगे? मसलन आज का जो मेरा लेक्चर है, मैं लेक्चर से ही सीधा सीधा स्टार्ट लूं तो बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हस्बुल्लाह। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। रफ कॉपी निकाल के रखना पास। ये एडवांस इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, इससे मुझे असेंशियल वाले बच्चों को यहाँ पे
अब प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये आम कोर्स नहीं है। आज मैं सिर्फ एक यूनिट कराऊंगा, लेकिन आइंदा 3 यूनिट भी होंगे, कभी 5 भी हुआ करेंगे। आज जस्ट 1 यूनिट कराऊंगा, क्योंकि पहले यूनिट फर्स्ट है, ये इनाग्रल, इट्स कॉल्ड इनाग्रल क्लास, इफ्तिताही क्लास। बेटा दुरूद पाक पढ़ लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम डूइंग। जब आप आई एम डूइंग से मुराद है कंटिन्यूअस टेंस। आप उर्दू में तो वो नहीं लिख सकता था ना, अगर आपने हार्ड कॉपी नहीं निकलवाई, प्रिंट नहीं निकलवाए, तो आज निकलवा लें। आई एम डूइंग के आगे आप लिखेंगे रहा, रही, रहे। ठीक है, बस जहन में रखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्सेप्ट आपने सोचना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहां कहां इस्तेमाल होता है? नंबर 1, प्रोग्रेस, PROGRESS। नंबर 2, abnormality, ABNORMALITY। abnormality क्या होता है? चीजों का नॉर्मल ना होना। नंबर 3, प्लानिंग, PLANING। देखना जरा, प्रोग्रेस, मैं पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स माई एक्शन इज इन प्रोग्रेस। Present continuous is also called present progressive tense. Like I am teaching, it means my action, teaching is in progress. It's going ahead. I'm teaching, progress है मेरी। I'm dancing, डांस कर रहा हूं, प्रोग्रेस में मेरा एक्शन। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, उसकी एक्शन क्या है? प्रोग्रेस में, प्लेइंग। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो तो खेलता ही रहता है। He is always playing. My friend is always calling me. You're always teaching. Most they are always watching films. वो तो फिल्में ही देखते रहते हैं, यानी एक्शन जो लगातार चलता रहता है। यार तू तो बोलता ही रहता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस की खाली निशानी रहा, रही, रहे नहीं है। तो निशानी क्या है फिर? नंबर 1 रहा, रही, रहे। नंबर दो क्या होगा? आप कहते हो एक्शन का कंटिन्यूअस चलना, अबनॉर्मल चलना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा? नंबर 1 प्रोग्रेस, मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग, मैं तो नाचता ही रहता हूं, आई एम ऑलवेज डांसिंग। अबनॉर्मेलिटी, ये लड़का तो हर वक्त इस गली में ही खेलता रहता है। दिस बॉय इज ऑलवेज प्लेइंग इन दिस स्ट्रीट। तू तो बोलता ही रहता है यार। यू आर ऑलवेज स्पीकिंग, तू तो बोलता ही रहता है। मैंने कहा कि कंटिन्यूअस टेंस 3 हालतों में यूज होता है। नंबर 1 प्रोग्रेस, नंबर 2 अबनॉर्मेलिटी, नंबर 3 प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? मैं कहता हूं आप तो, सॉरी, मैं खेल रहा हूं यार, एक तो ना अभी आ जाते हैं ये पर्सनल पे। इतना देखें, लिंक आपके पास मौजूद है, ग्रुप में क्यों नहीं आते आप? मैं पर्सनल किसी को कभी भी नहीं भेजूंगा, मैंने पढ़ाना होता है। अब मेरी पहली क्लास भी खराब की है बच्चों ने। मैं इनको आज, इनको तो मैं थकाऊंगा ना, इनको तो मैं नहीं शामिल करूंगा। ग्रुप में आके मेरे से बात कर, इंडिविजुअली बात नहीं होगी किसी के साथ। सारा रिदम तोड़ देती। अच्छा, और कुछ बच्चे हैं वो इतना लंबा मैसेज करते हैं, मैं मैसेज लंबा नहीं सुनता, शॉर्ट। ये ना को सर अगर माइंड ना करें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारी बात फजूल है, वही बात कहें ना। अच्छा बच्चों, मैं कहता हूं आप नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, ये क्या है? प्रोग्रेस। कंटिन्यूस टेंस कितने मौके के लिए इस्तेमाल होते हैं? 3। नंबर 1 प्रोग्रेस, नंबर 2 अबनॉर्मेलिटी, नंबर 3 प्लानिंग। सबसे पहले प्रोग्रेस, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाने लगा हूं, प्लानिंग, आई एम गोइंग टू टीच, मैं तो पढ़ाता ही रहता हूं, अबनॉर्मेलिटी, आई एम ऑलवेज टीचिंग। ठीक है। आप कहते हैं कि पाकिस्तानीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन क्रिकेट, पाकिस्तान इज गोइंग टू परफॉर्म वेल। इट मीन्स पाकिस्तान ने प्लान कर लिया, पाकिस्तान इज गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द प्ले ग्राउंड टूडे।
our team has got the good players like मुझे तो किसी अच्छे खिलाड़ी का नाम ही नहीं आता, ना कोई अच्छा है, माजी में ही था. Like they have got Waqar Younes, they have got Abdul Qadir, they have got Wasim Akram, and they have got Shahid Afridi. But Shahid Afridi तो खैर बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस तो बड़ी शुरू से मुझे पसंद नहीं. They have got ABC मियादाद. ओके, मैं कहता हूँ मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ. आई एम राइटिंग. अब आप पैरा लिखते हैं ना. Nowadays I am writing an essay and I am trying to make it perfect one. आजकल मैं एक ऐसे लिख रहा हूं और मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि परफेक्ट बना दूं. यानी जब आप पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर कंटिन्यूस कैसे पुट करते हैं. आप कहते हो आजकल तालिब इल्म लैंग्वेज सीख रहे हैं और उनकी तवज्जो जदीद किताबों पर है. Nowadays the students are learning English language and they are focused on modern books. ठीक है, they are focused on modern books. यानी एक्शन आजकल हो रहा है, उस वक्त नहीं हो रहा. आजकल तो लिख लो रफ कॉपी पे, जो अमल आजकल हो रहा है वो भी कंटिन्यूस टेंस है. ठीक है. अच्छा, प्लानिंग मंसूबा बंदी के लिए भी कंटिन्यूस टेंस यूज होता है. वो कैसे. मैं बोलने लगा हूं. आई एम गोइंग टू स्पीक. कोई भी कंटिन्यू. एक और बात बेटा, कोई भी कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर कंटिन्यूस, वो तीन मकासद के लिए यूज होगा. वो तीन मकासद कौन से होंगे. प्रोग्रेस, प्लानिंग, अबनॉर्मेलिटी. प्रोग्रेस, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग. प्लानिंग, आई एम गोइंग टू राइट. abnormality, I'm always writing. Past में I was writing. I was always writing. मैं वहां दफ्तर में था ना, मैं तो लिखता ही रहता था, एक ही काम था. I was always writing. I was going to write. मैं लिखने लगा था. फ्यूचर में he will be writing. He will be going to write. He will always be writing. यानी किसी भी कंटिन्यूस टेंस में बेटा कितनी हालतें हैं. तीन. प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रोग्रेस, प्लानिंग और अबनॉर्मेलिटी, तीन हालतों में कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है. लिख लिया. निशानी क्या है पहले. मैं पढ़ा रहा हूं, प्रोग्रेस. रहा रही रहे. मैं पढ़ाने लगा हूं, प्लानिंग. मैं तो पढ़ाता ही रहता हूं, abnormality. It means present continuous tense is used for three objects, for three actions. कैसे. परिंदा उड़ रहा है. The bird is flying. The bird is going to fly. Planning. This bird is always flying. ये परिंदा तो उड़ता ही रहता है. ठीक है. अब आते हैं हम लेसन पे. स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. ये सिचुएशन देखो कैसे. सबसे पहले जब भी आप पैराग्राफ या कुछ भी ऐसे लिख रहे हो ना, CSS हो या जो भी हो, आपने दिमाग में वो सिचुएशन पैदा करनी है उर्दू से हट के. Sarah is in her car. She's on her way to work. सारा अपनी गाड़ी में और वो काम को जा रही है. She is driving to work. वो ड्राइव कर रही है कि काम तक पहुंचे. She is driving. Progress. ठीक है, कंटिन्यूस हो गया. This means she is driving now at the time of speaking. The action is not finished. फिनिश नहीं हुआ, एक्शन हो रहा है. ठीक है. इसी तरह आई एम बोलने में क्या होगा. आई एम अ टीचर, एम अ टीचर. आई एम ड्राइविंग, एम ड्राइविंग. ही शीट होगा तो इज. ही इज ड्राइविंग, शी इज ड्राइविंग, इट इज ड्राइविंग. ही इज ड्राइविंग, शी इज ड्राइविंग, इट्स ड्राइविंग बोलने में होगा. वी आर ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग, दे आर ड्राइविंग लिखने में होगा. बोलने में वी ड्राइविंग, यू ड्राइविंग, दे आर ड्राइविंग. यानी क्या. आई एम ड्राइविंग बोलने में, लिखने में आई एम ड्राइविंग. ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग. वी आर डूइंग, वी आर डूइंग. यानी खाली आई एम राइटिंग, ही इज राइटिंग, वी आर राइटिंग. आई एम डूइंग इसका मतलब है प्रोग्रेस. बेटा
प्रोग्रेस कैसे शो होनी है? आई एम डूइंग समथिंग। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम ट्राइंग टू वर्क। इतना शोर मत कर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि काम करूं। आई एम ट्राइंग टू वर्क। वेयर इज मार्क? मार्क कहाँ है? ही इज हैविंग अ शावर। वो शावर, वो नहा रहा है। अच्छा रुक जाओ यहाँ पे बेटा। मैं लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग। मैं नाश्ता कर रहा हूं। नाश्ते की क्या इंग्लिश है? ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट। हैविंग, करना। मैंने नाश्ता कर लिया है। आई हैव हैड अ ब्रेकफास्ट। हैव अ लंच, लंच करना। मैंने लंच, मैं लंच कर रहा हूं। आई एम हैविंग अ लंच। मैंने लंच कर लिया है। आई हैव हैड अ लंच। ठीक है। हैव अ डिनर। आई हैव हैड अ डिनर। मैंने डिनर कर लिया है। ठीक है। आई हैव हैड अ डिनर। हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ शावर, हैव अ ब्रेकफास्ट। जो इस हैव के पीछे हेल्पिंग वर्ब हैव लग जाए तो ये हैव हैड बन जाएगा। वेयर इज मार्क? ही इज हैविंग अ शावर। वो नहा रहा है। लेट्स गो आउट नाउ। आइए बाहर चलते हैं। इट इजंट रेनिंग एनी मोर। अब तो बारिश हो ही नहीं रही है। हाउस योर न्यू जॉब? तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है नई वाली? आर यू एंजॉयिंग इट? क्या तुम इससे एंजॉय कर रहे हो? व्हाट्स ऑल दैट नॉइज? ये शोर कहां से उठ रहा है? व्हाट्स ऑल दैट नॉइज? व्हाट्स गोइंग ऑन? हो क्या रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? यानी ये सब कंटिन्यूस है। व्हाट्स गोइंग ऑन, आईएनजी आया। व्हाट्स हैपनिंग? Steve is talking to a friend on the phone. He says, Steve बातें कर रहा है फोन पे। कंटिन्यूस टेंस है क्या? I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who at the moment, फिलहाल मैं एक किताब, अभी तो नहीं पढ़ रहा। एट द मोमेंट है, अभी तो नहीं पढ़ रहा ना। वो कहता है आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, यानी आजकल जो एक्शन हो रहा है वो भी कंटिन्यूस है। Steve says, I'm reading, but he is not reading the book at the time of speaking. It means that he has started reading the book but has not finished it yet. He's in the middle of reading it. जिस तरह मुझे कहते हो सर आप क्या कर रहे हो? आई एम एंजॉयिंग नाउअडेज। अभी तो नहीं एंजॉय कर, अभी तो काम कर रहा हूँ। आई एम स्विमिंग नाउअडेज। अभी तो नहीं स्विम कर रहा, आजकल स्विम कर रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ रुक जाओ, लिखो जरा। वो फूल तोड़ रहा है। आसान सा फिक्र है। वो फूल तोड़ रहा है। अगला, वो फूल तोड़वा रहा है। अगला, वो मुझसे फूल तोड़वा रहा है। ठीक है। वो फूल तोड़ रहा है, यानी पिक। ही इज प्लकिंग द फ्लावर। तोड़ रहा है खुद। वो फूल तोड़वा रहा है, पता ही नहीं किससे। जब एक्शन करने वाले का नहीं पता तो क्या करेंगे? गेट लगा के थर्ड फॉर्म। वो फूल तोड़वा रहा है। इज गेटिंग द फ्लावर प्लक्ड। वो मेरी बेइज्जती करवा रहा है, किससे? पता ही कोई नहीं, तो गेट लगा के थर्ड फॉर्म। इज गेटिंग मी इंसल्टेड। वो आपसे मेरी बेइज्जती करवा रहा है। अब तो पता है ना आपसे, यानी आपको बना रहा है कि मेरी बेइज्जती करो। ही इज मेकिंग यू इंसल्ट मी। ठीक है। मैं दरवाजा खोल रहा हूं। आई एम ओपनिंग द डोर। मैं दरवाजा खुलवा रहा हूं, किससे? पता ही कोई नहीं। आई एम गेटिंग द डोर ओपन्ड। मैं आपसे दरवाजा खुलवा रहा हूं। आई एम मेकिंग यू ओपन द डोर। दोबारा से, वो हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। दे मेकिंग अस, यानी हमें बना रहे हैं। दे आर मेकिंग अस टेल अ लाई। ना कर, दे आर मेकिंग अस टेल अ लाई। वो हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। मेकिंग अस टू टेल नहीं आएगा, मेकिंग अस टेल अ लाई।
आप मुझसे किताब लिखवा रहे हो। यू मेकिंग मी राइट अ बुक। आप किताब लिखवा रहे हो, पता ही नहीं किससे। यू आर गेटिंग अ बुक रिटन। काम करने वाले का नाम पता हो तो गेट लगा के थर्ड फॉर्म, पता हो तो मेक लगा के फर्स्ट फॉर्म। दोबारा से, वो फर्श धो रहा है खुद ही इज वॉशिंग द फ्लोर। वो फर्श धुलवा रहा है, पता ही नहीं किससे। इज गेटिंग द फ्लोर वॉश्ड। वो मुझसे फर्श धुलवा रहा है। इज मेकिंग मी वॉश द फ्लोर। क्लियर? अच्छा। वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। आगे लिखो, वो किसको पढ़ा रहा है? वो किसको पढ़ा रहा है? वो किसके खिलाफ बोल रहा है? वो किसको पढ़ा रहा है? किसको? हाँ जी, दो तरह से करेंगे इसको। वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वो किसको पढ़ा रहा है? टू होम, WHOM, होम। टू होम इज ही टीचिंग। टू होम इज ही टीचिंग। वो किसको पढ़ा रहा है? वो किसके खिलाफ बोल रहा है? अगेंस्ट होम इज ही स्पीकिंग। वो किसको सजा दे रहा है? टू होम, किसको? टू होम यानी WHOM। टू होम किसको? अगेंस्ट होम किसके खिलाफ? विद होम किसके साथ? फॉर होम किसके खिलाफ, ना किसके साथ, ना किसके लिए। फॉर होम किसके लिए? वो किसके लिए किताबें खरीद रहा है? फॉर होम इज ही बाइंग द बुक। वो किसके खिलाफ बोल रहा है? अगेंस्ट होम इज ही स्पीकिंग। वो किसके साथ जा रहा है? विद होम इज ही गोइंग। टू होम किसको? टू होम इज ही टीचिंग। वो किसको पढ़ा रहा है? दोबारा से, वो किसको सजा दे रहा है? टू होम इज ही पनिशिंग। अमेरिकन क्या कहते हैं? हु इज ही पनिशिंग टू? टू होम इज ही पनिशिंग ब्रिटिश में। हु इज ही पनिशिंग टू अमेरिकन? वो किसके खिलाफ बोल रहा है? अगेंस्ट होम इज ही स्पीकिंग। अमेरिकन क्या कहते हैं? हु इज ही स्पीकिंग अगेंस्ट? हु इज ही स्पीकिंग अगेंस्ट? वो किसके लिए आ रहा है? फॉर होम इज ही कमिंग। फॉर होम इज ही कमिंग। अमेरिकन कहते हैं हु इज ही कमिंग फॉर? हु इज ही कमिंग फॉर? वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने लगे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। यार वो तो क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, दे आर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। अब नॉर्मेलिटी हो गई। दोबारा से, वो फूल तोड़ रहा ना, सॉरी, वो दरवाजा खोल रहा है, ही इज ओपनिंग द डोर। वो दरवाजा खुलवा रहा है, पता ही नहीं किससे यार। इज गेटिंग द डोर ओपन्ड। वो मुझसे दरवाजा खुलवा रहा है, इज मेकिंग मी ओपन द डोर। यार वो तेरे से झूठ बुलवा रहा है, इज मेकिंग यू टेल अ लाई। तू हमें जलील करवा रहा है, पता ही नहीं किससे। तू हमें जलील करवा रहा है। यू आर गेटिंग अस डिसग्रेस्ड। यू आर गेटिंग अस डिग्रेडेड। यू आर गेटिंग अस डिसग्रेस्ड। वो पाकिस्तान को तबाह करवा रहे हैं, दे आर गेटिंग पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड। तुम हमारा नाम रोशन करवा रहे हो, पता ही नहीं किससे। यू आर गेटिंग आवर नेम एनलाइटेंड। तुम अपने दोस्त से गाड़ी चलवा रहे हो, यू आर मेकिंग योर फ्रेंड ड्राइव द कार। वो किसको पढ़ा रहा है? टू होम इज ही टीचिंग या हु इज ही टीचिंग टू?
वो किसके लिए आ रहा है? फॉर होम इज ही कमिंग, या हु इज ही कमिंग फॉर? वो किसके खिलाफ बोल रहा है? अगेंस्ट होम इज ही स्पीकिंग, या हु इज ही स्पीकिंग अगेंस्ट? फॉर होम इज ही ब्रिंगिंग बुक्स, या हु इज ही ब्रिंगिंग बुक्स फॉर? क्लियर? अब ये दोबारा सुन लेना, रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा मैं आपके। मैं ग्रुप्स पैदा कर दूंगा, असेंशियल और इंग्लिश ग्रामर इन यूज, और फिर जिनकी फीस नहीं आई होगी उनको ग्रुप से निकाल देंगे। और आपके मैं जो है ना कोड नेम्स दे देता होता हूँ, फिर आप जहाँ कोड नेम्स के साथ आया करोगे। और किसी ने हैंकी पैंकी की मेरे साथ, सीधा सीधा केस करता होता हूँ, सीधा सीधा साइबर। बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान को ऑनलाइन में बड़ी बचत हो रही है, हमारे सारे बहुत अच्छा ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो जो आप हमें डिस्टर्ब करेगा वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा थ्रू FIA। और आपको भी कोई ऑनलाइन डिस्टर्ब करे कि मुझे बताना, उस पर केस कर देंगे, फिर सुलह करके उसे पैसे देंगे, डबल फीस से डबल। 2,000 है, दो इसके साथ 3 सिफरें लगा दो, फिर सुलह के वो पैसे होंगे। अच्छा, अब ऐसे शिकार ढूंढा करो, क्योंकि ऑनलाइन ये बड़ा काम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन को बहुत प्रोटेक्शन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, मौजूदा हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया ये वाला, कि ऑनलाइन को प्रोटेक्ट कर दिया। बस एक काम है इंशाल्लाह नेट वाला, वो भी हल हो गया तो फिर हमारा ऑनलाइन वाला काम ज्यादा अच्छा होगा। तकरीबन हल ही है, अच्छा चल रहा है। ये महमूद अली बार बार अपना नाम लिखी ही जा रहा है, तो लिखी ही जा रहा है। आप मुझे तस्वीर भेज दो, मैं तेरी तस्वीर लगा दूंगा कि महमूद भी है यहाँ पे। आई एम डूइंग, प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइस, आई एम ट्राइंग टू वर्क। वेयर इज मार्क? ही इज हैविंग अ शावर, वो नहा रहा है। अब ये नहीं कहना ही इज शावरिंग। अच्छा, मैं कहता हूँ वो नाश्ता कर रहा है। ही इज हैविंग अ ब्रेकफास्ट, ही इज हैविंग अ डिनर, ही इज हैविंग अ लंच। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ही इज लंचिंग, ही इज ब्रेकफास्टिंग, ही इज डिनरिंग। ठीक है, गलत होगा। ही इज शावरिंग, ये भी गलत होगा। लेट्स गो आउट नाउ, आओ चलते हैं बाहर। इट इजंट रेनिंग एनीमोर, बारिश तो हो ही नहीं रही। हाउस योर वर्क, हाउस योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉयिंग इट? व्हाट्स ऑल दैट नॉइस? क्या हो रहा है? ये नॉइस, ये शोर क्यों है? ये हंगामा है क्यों बरपा? ये क्या है शोर? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है? आपने सुना होगा गाना, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। Sometimes the action is not happening at the time of speaking. For example, I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who, वही, आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, ये एक बंदे के बारे में। आजकल पढ़ रहा है ना, अभी तो नहीं पढ़ रहा। तो ऐसा एक्शन लिख लो। ऐसा एक्शन जो आज कल हो रहा है उसमें भी कंटिन्यूस आता है। सेकंड लिखो, अब नॉर्मल हालत में भी कंटिन्यूस आता है। मसलन आप कहते हो ये लड़की तो गाने ही गाती रहती है। अब आपने उर्दू ग्रामर पढ़ी हुई तो ये गलत पढ़ेंगे ना। मैं कहता हूँ ये लड़की तो गाने ही गाती रहती है, आप कहते हो ता है, थी है, ते है, इंडेफिनेट, तो गलत हो गया ना। वो कुत्ता है तो क्या ये इंडेफिनेट है? भाई, सिचुएशन को समझा करो। ये लड़की तो गाने ही गाती रहती है, इसको कंटिन्यूस में करेंगे। दिस गर्ल इज ऑलवेज सिंगिंग सॉन्ग्स, वो तो बोलता ही रहता है। ही इज ऑलवेज स्पीकिंग, वो तो खेलता ही रहता है। ही इज ऑलवेज प्लेइंग, तुम तो वक्त ही जाय करते रहते हो निखट्टू कहीं के। यू आर ऑलवेज वेस्टिंग योर टाइम यू स्टूपिड मैन। वो बोलने लगा है, ही इज गोइंग टू स्पीक। अहमद तू उधर बैठ जा। वो नाचने लगा है, ही इज गोइंग टू डांस, यानी प्लानिंग। हम कहते हो जहाज उड़ने लगा है। द एरोप्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ। ठीक है, वो परिंदा उड़ने लगा, द बर्ड इज गोइंग टू फ्लाई। मैं उसे चपेड़ मारने लगा हूं, आई एम गोइंग टू स्लैप हिम।
Why are you studying so hard nowadays? I see you coming and going in this library all the time. Actually, I'm going to appear in the CSS examination. Okay, you are going to appear in the CSS examination? Yes, I'm going to be the officer. To be होना. I'm going to be मैं होने लगा हूं. Officer. Officer. He's going to be an officer. He's working so hard. He's always studying. हमेशा पढ़ता ही रहता है. क्लियर. अब दोहरा लेते हैं. वो किसको पढ़ा रहा है? To whom is he teaching? अमेरिकन क्या कहेगा? Who is he teaching to? वो किसके लिए आ रहा है? For whom is he coming? Who is he coming for? वो किसके खिलाफ बोल रहा है? Against whom is he speaking? Who is he speaking against? वो किसके साथ जा रहा है? With whom is he going? अमेरिकन कहेंगे who is he going with? क्लियर. वो किताब लिखवा रहा है, पता नहीं किससे. ही इज गेटिंग अ बुक रिटन. वो मुझसे किताब लिखवा रहा है. ही इज मेकिंग मी राइट अ बुक. ये शरोस आनिया ते जानिया देखते रहिए. आ जा जा आ. सरकार टिक भी जाओ. कैट वांट्स टू वर्क इन इटाली. कैट वांट्स टू वर्क इन इटली. इटली में काम करना चाहती है केट. शी इज लर्निंग इटालियन. इटालियन सीख रही है. बट परहैप्स गालबन शी इज नॉट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस वक्त वो बोल रही है ना कि मैं इटालियन सीख रही हूं, उस वक्त तो नहीं सीख रही, यानी आजकल सीख रही है. सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस. मेरे कुछ दोस्त अपना घर बना रहे हैं. दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर. उन्हें उम्मीद है कि अगली गर्मियों तक खत्म हो जाएगा. अभी वो बना रहे हैं. सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस. ठीक है. यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद टुडे, दिस वीक, दिस ईयर. आप कहते हो और कहां कहां यूज कर सकते हो? टुडे, दिस वीक, दिस ईयर. यू आर वर्किंग हार्ड टुडे. तुम आज बड़ी मेहनत कर रहे हो. क्या मसला है? यस आई हैव अ लॉट टू डू. मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है. रफ कॉपी पास है तो लिखो. पड़ता है. हैव टू और हैज टू. हैव टू और हैज टू. मुझे बोलना पड़ता है. ये भाई करते जाएं, ये मुसीबत फिर बाद में पैदा होती है. मुझे पढ़ाना पड़ता है. आई हैव टू टीच. उसे पढ़ाना पड़ता है. ही हैज टू टीच. यानी ड्यूटी है. लिखो पक्की ड्यूटी है. अगर ड्यूटी ना हो तो फिर आई एम टू, ही इज टू, दे आर टू. मुझे पढ़ाना है. ना पढ़ाऊं तो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी थोड़ी है. आई एम टू टीच. उसे पढ़ाना है. ही इज टू टीच. ना पढ़ाए कोई बात नहीं. उन्हें पढ़ाना है. दे आर टू टीच. मुझे पढ़ाना पड़ता है. आई हैव टू टीच. वी हैव टू टीच. दे हैव टू टीच, यानी ड्यूटी है. इज टू, एम टू और आर टू टीच का मतलब है ड्यूटी नहीं है. बस यार मेरा शौक है. ना पढ़ाऊं तो कोई बात नहीं. हो गया. द कम सॉरी. यू आर वर्किंग हार्ड टूडे. यस आई हैव अलॉट टू डू. मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है. अलॉट बहुत कुछ. द कंपनी, द कंपनी आई वर्क फॉर, वो कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूं, इजंट डूइंग सो वेल. कोई अच्छा काम नहीं कर रही इस साल. The company I work for isn't doing so well this year. जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ इस साल कोई अच्छा काम नहीं कर रही. Use the present continuous when we talk about a change that has started to happen. ऐसी तब्दीली जो वकूफ पजीर होना शुरू हुई है. मसलन getting, becoming, getting होना, becoming होना, changing, improving, starting, beginning, increasing, rising, falling, growing. Is your English getting better? क्या यानी becoming या getting better, क्या तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर हो रही है? The population of the world is increasing very fast. दुनिया की आबादी बहुत जल्दी से बढ़ रही है. Increasing, बढ़ना.
एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब, पहले पहले तो मुझे नौकरी पसंद नहीं थी अपनी, बट आई एम स्टार्टिंग टू एंजॉयिंग इट नाउ, अब मैं इसको शुरू कर रहा हूं कि एंजॉय करूं। बेटा आप देखें जरा, एक्सरसाइज मेरे उसी लेक्चर की बेस के ऊपर है ये एक्सरसाइज, इसको हल करना है आपने, तो कैसे करेंगे? पहले क्या लिखा हुआ है, शी इज टेकिंग अ पिक्चर, लड़की तस्वीर बना रही है ना। अगला बंदा क्या कर रहा है, ही इज टाइंग अ शूलेस, बांध रहा है ना। अगर आपको समझ नहीं है तो पीछे आंसर शीट लगी हुई है, आप उससे नकल करके बेशक लिख लें और फिर सोचें कि ये जो मैंने नकल किया है ये जवाब कैसे ठीक है, फिर मिटा दें, फिर खुद करें, यानी कच्ची पेंसिल से नकल करें फिर मिटा दें। इस प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, तीसरा है द रोड, ये रोड को क्या कर रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस कर रहे हैं। चौथे में क्या कर रहा है, पांचवे में ये हेड को क्या कर रहा है, हिज हेड है, ही इज टचिंग हिज हेड या बीटिंग हिज हेड, कुछ भी कर रहा है। पांचवा, शी इज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, दरख्त के पीछे छुप रही है, हाइडिंग कर रही है ना। ये छठे में क्या कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू समबॉडी या दे आर सेइंग हाय टू समबॉडी, ये किसी को हाय कह रहे हैं। ये पीछे आंसर शीट के मुताबिक कर लें। The sentences on the right follow those on the left. Which sentence goes with which? The sentences on the right follow those on the left. ये जो पहला सेंटेंस है ना, वो यानी जो 1 2 3 वाले ये ABC वालों के कुछ लगते हैं, इनका ताल्लुक जोड़ें। विच सेंटेंस गोज विद विच, किसके साथ क्या लगेगा। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइस, अरे शोर मत करो, क्यों ना करो, प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइस, शोर मत करो, क्यों, आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इनके आंसर्स आप खुद करें ना, प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइस। ये महमूद अली भी माशाल्लाह आनिया ते जानिया देखो। अच्छा, वी नीड टू लीव सून, हमें बहुत जल्दी जाना है, क्यों, आई एम गेटिंग हंग्री, अब आई की तो बात ही नहीं हुई, हमें जल्द जाने की जरूरत है क्योंकि मुझे भूख लग रही है, नहीं। दे आर लाइंग, नहीं। इट्स स्टार्टिंग टू रेन, हाँ ये हो सकता है। वी नीड टू लीव सून, इट्स स्टार्टिंग टू रेन, बारिश शुरू हो रही है, ठीक है। या इट्स गेटिंग लेट, लेट हो रही है। अच्छा, इसको आप करेंगे खुद कैसे करेंगे, पीछे आंसर शीट से नकल कर लेना बेशक। राइट क्वेश्चंस यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट्स ऑल दैट नॉइस, ये शोर क्या है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों, व्हाई यू क्राई लिख दिया ना, व्हाई आर यू क्राइंग, वेयर इज योर मदर, शी वर्क टुडे, शी इज वर्किंग टुडे या शी इज ऑन वर्क टुडे, आई हैव सीन यू फॉर एजेस, व्हाट यू डू दीज डेज, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल कर क्या रहे हो, खुद करना है। इसी तरह 1.4 खुद करना है, कहां से करोगे, पीछे आंसर शीट लगी हुई है इसी बुक के, मैं आपको अभी शेयर करता हूं, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से बुलवाऊंगा एक एक को ओपन करके कि हाँ जी जरा बोलो क्या किया, और किसी को समझ नहीं आई होगी तो फिर मेरे से पूछेगा सर ये सेंटेंस कैसे हुआ है, ठीक है। आगे, अच्छा बच्चों, अब आप एक असाइनमेंट करो छोटी सी, ये मैंने आपको हल करानी है आज, छोटे से फिक्रे दूंगा। लिखो, एक छोटा सा पैसेज होता है ये, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि मेरे पास इसका सिलसिला रहे, तो रिकॉर्डिंग इधर भी हो रही है, आप तक पहुंचेगी। ये कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही है। लिखो,
मेरे वालिद साहब एक नया मकान बनवा रहे हैं और एक माहिर पेंटर से उसकी दीवारें सजवा रहे हैं। दरअसल मेरा बड़ा भाई अमेरिका से वापस आने लगा है और इस सिलसिले में हम अपने घर को खूबसूरत करा रहे हैं। चूंकि हमारे शहर में हर वक्त बारिश होती रहती है, इसीलिए हम छतों को बहुत मजबूत बनवा रहे हैं। बस अब ये मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, आपके पास भी, इसको कल सॉल्व करके रखें और इस पे इंशाल्लाह कल बात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने पढ़ने अपनी फीसें जमा करा दें और मैं ग्रुप कल से अपडेट कर दूंगा। जनरल ग्रुप पे मैं आप शेयर नहीं करूंगा ये सब कुछ। आपको मैं आ, कुछ मैं कोड्स बनाता होता हूँ। और एक होती है कुत्ते मार मुहिम। कुछ बच्चे होते हैं जो है ना बगैर फीस के ग्रुप्स में दाखिल होते हैं, तो फिर हम उनके लिए कुत्ते मार मुहिम शुरू करके उनको ग्रुप से निकालते भी हैं और जलील भी करते हैं। ठीक है। तो बहुत सीरियस बच्चे दाखिला ले लें, मैं पढ़ाऊंगा। कम ज्यादा की कोई बात नहीं है। मैं इस वक्त भी अबव 100 बच्चा पढ़ा रहा हूँ और बाहर से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे कोई ऐसा चक्कर नहीं, मैं आपको सर्व करना चाह रहा हूँ। तो जो मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, पर्सनल भी मैं आपके मसाइल हल करूंगा। और इंशाल्लाह जी कोऑपरेशन से क्लास चलेगी बेटा। 2000 का मैंने भी कोई बंगला नहीं बना लेना। और मैंने आपको एक एक लफ्ज सिखा देना, जितने तक ये बुक नहीं सीखेंगे आप सारी जिंदगी अंग्रेजी सीखते रहे, आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज। हाँ, कल का टाइम टेबल सुन लो। कल एसेंशियल ग्रामर वालों की क्लास है 7:30 से 8:30। और आपकी क्लास है बेटा 9 से 10 बजे, इंशाल्लाह तरतीब से चलेगी। आज बेतरतीबे हम चलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। और दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जिस महफिल का इख्तिताम बगैर जिक्र इलाही या जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर हो तो कहा जाता है, मजहब कहता है कि गोया के उन उस महफिल वालों ने मुर्दार खाया हो। या हयो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम।